Congratulations, Sayed, first of all. कि, Thank you, sir. कितना टारगेट था आपका? Sir, मेरा target 79 plus in each band. ठीक है. And your current score is like 80 plus in all the modules, right? Yeah, 83 is the minimum for listening and writing, then 85 in reading and 19 in speaking. ठीक है. So, Sayed, how did you contact me? Like through YouTube or कैसे? How did you come to know? Yeah, so I was following you from many months, from maybe I think from September, October. So I was seeing your number. So I from there only I got your number and I contacted you on WhatsApp and Okay, I'm here. ठीक है. So, Sayed, how was your overall experience of the classes and Sir, I must say, sir, the way you speak teach is perfect. Means the strategy, the way you're teaching, like you're teaching to a normal, means a normal person, not someone who is very expert in English, and so the way is very good. And for example, the I was very weak in FIB reading and writing, and so you know that. yeah, So because I was not aware what need to be filled, how the grammar need to be taken care. So in your classes, I learned collocation, conjunction, all those things in very crisp manner. And not only FIB reading, writing. Apart from that, for example, I had a confusion in summarize spoken test. spoken text? Yeah, FIB listening and repeat sentence. For example, I was starting after 3 minutes sometime, and the fluency is not that Yeah, after perfect. three So seconds, yes, exactly. yeah, for Uh, some question. So in that way, so I would say you told me in a proper manner, and it was very helpful. And the technique you were telling is perfect. ठीक है. So let's start from the beginning, from the read aloud itself. कैसे कैसे Hmm. आपका एग्जाम गया and क्या क्या चीज़ें आपने बोली, like from in read aloud did you follow one line or did you read the full No, passage? I never followed one line. I Hmm. prefer to read complete sentence Hmm. with proper fluency, no pause at all, or एक चीज व्हाट आई स्ट्रेस स्पीकिंग एवरी वर्ड प्रॉपरली, मतलब Hmm. कि सारे वर्ड जो स्पीक ऑडियो में आने चाहिए वो एक एक वर्ड मुंह से प्रॉपर निकलने चाहिए, क्योंकि सम टाइम क्या होता था कि मैं थोड़ा तेज बोल जाता था Hmm. तो वर्ड प्रॉपर नहीं आता था। Right. उस केस में वो नंबर गिर जाता था मेरा, मतलब मॉक कंटेंट के टेस्ट। अंदर. हाँ, Hmm. तो वो चीज़ मैंने फिर प्रैक्टिस कर करके प्रॉपर वर्ड, चाहे थोड़ा-सा स्लो बोलो, लेकिन प्रॉपर वर्ड मुँह से निकलना चाहिए। यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है. So read aloud you read full. Then what about repeat sentences? वो कैसे थे रियल एग्जाम में? अ, ठीक थे, मतलब मिक्स थे, कुछ टफ थे, कुछ मीडियम थे, कुछ ईज़ी थे। तो कितना की यूजुअली पिक करते थे आप इन टर्म्स ऑफ कंटेंट? 90%, ओके. 90%, कुछ समटाइम 100%, और 1-2 में आई थिंक इट वाज़ 70-80% ठीक है. एक दो क्वेश्चन यूजुअली टफ भी रहता है. टफ रहता है। 70 से भी बहुत नीचे कई बार तो 3-4 वर्ड ही समझ में आते हैं बस. बहुत लेंदी हो जाता है. Then what about describe image and retell lecture? So describe image, I would say कि template is useful. Any one template means either if someone is using your template or someone else template is very useful. But after the changes in I think it was in November 2024, Yeah. so we need to follow. I was following after November. पहले मैं क्या करता था कि सिर्फ कीवर्ड आई एम हेयर टू स्पीक 40 सेकेंड वो वाला Hmm. मैं करता था। A memorized structure complete. हाँ, Right. सिर्फ जो कीवर्ड होता था वो बोल Hmm. देता था अपडेट से पहले। उसके बाद मैंने फिर स्ट्रैटेजी चेंज किया। फिर हाई, जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट्स ग्राफ, सो हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, और क्या दिख रहा है ग्राफ में, ठीक और है. तो So वो you चीज़ें। highlighted some points, that some particular points from the graph basically, यस, right? या, You created few lines on your own, या, right? एंड आई मेक श्योर दैट टू स्पीक मोर देन 30 सेकंड। ठीक है. And same thing you did in retail lecture as well? So phrases वगैरह आपने पिक किया retail lecture में या या, keywords कैसे mix नहीं, नहीं, किया? फ्रेज, Phrases only. फ्रेजेस, And were you using the template or were you mixing the template टेम्प with your own lines? टेम्पलेट। Template only. चलो ठीक है. Then next is the writing part. Summarize, return and essay writing. समराइज रिटर्न एज यू नो कुछ होता नहीं है, जस्ट वी हम्म. नीड टू ऐड कंजक्शन एंड सो, जैसे आपने बताया था। ठीक तो है. बस वो वही करना है एंड मेक श्योर कि जैसे आपने बताया था वी नीड टू मेक श्योर दैट बिटवीन 50 to 60 वर्ड।
सो ठीक है, वही चीज़ मैंने फ़ॉलो किया। ठीक है। एंड देन एसे राइटिंग? टेम्पलेट अगेन। और उसमें टैबलेट, सिर्फ़ टैबलेट फ़ॉलो किया, डिड यू ऐड सम लाइन्स ऑन योर ओन जैसे बताया गया था? आई आई मेक श्योर कि 100 के आस-पास मेरे खुद के वर्ड्स होते थे। ओके, ठीक है। 100 100 टू 120। कौन-सा टॉपिक था आपके पास? मेरे पास था कि लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज इन द स्कूल शुड बी मैंडेट और नॉट। ठीक है, फ़ॉरेन लैंग्वेज मैंडेटरी करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए विद सम एग्जांपल ऑफ योर ओन और सम अदर एग्जांपल। ओके। उसके बाद रीडिंग वाला पार्ट। रीडिंग के अंदर व्हाट वाज़ योर स्ट्रैटेजी और कितने क्वेश्चंस आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते थे? बिकॉज़ आई थिंक रीडिंग वाज़ वन थिंग जिसके बारे में आप थोड़ा-सा टेंशन में थे। रीडिंग सबसे वीकेस्ट पार्ट था। वीकेस्ट सबसे हुँ, वीकेस्ट पार्ट था मेरा। तो स्टार्टिंग में सब मुझे समझ भी नहीं आता था। इट वाज़ लाइक मतलब कि प्रॉपर मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या जाना चाहिए। हुँ, तो आपकी क्लासेस के बाद मुझे थोड़े बहुत ग्रामर जो आपने बताया था कोलोकेशन, कंजंक्शन एंड लिंकिंग वर्ड्स वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ मैंने प्रॉपर गो थ्रू किया और उसके अलावा द मेन थिंग व्हाट आई फेल्ट और आपने जो बताया कि 60 टू 70% कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ। कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट या को आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। हुँ, मतलब एक बैक ऑफ द माइंड आपके पूरा चलना चाहिए एंड वो चीज़ स्टार्टिंग में नहीं हो पाता था। बाद में फिर वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते वो चीज़ अपने आप फिर आने लगी। तो ठीक वो है, काफ़ी फ़ायदा रहा। ठीक है। सो या कॉन्टेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट बेसिकली एंड यस, साइमल्टेनियसली आप कोलोकेशंस एंड बाकी सारी चीज़ें थोड़े-थोड़े सीखते रहो उनको, ग्रामर वगैरह एंड ऑल। दे विल बी अ गुड हेल्प बट कॉन्टेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? यस सर। ठीक है। एंड कोई रिपीटेड क्वेश्चंस थे आपके पास रीडिंग के अंदर? रीऑर्डर, अ, रीडिंग फिल अप में? एफआईबी रीडिंग राइटिंग में 1 मॉक से था, बाकी कुछ ही मॉक से नहीं था। ठीक है, तो मोस्टली सब नया ही आया हुआ था। सब नए आए ठीक थे। है, इट इट आई थिंक फिर परफॉर्मेंस उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया आपने फिर भी। हुँ, नए क्वेश्चंस क्योंकि यूजुअली कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, जो थोड़े हुँ, से वीक स्टूडेंट होते हैं, कई बार 80 से नीचे लटके होते हैं, वो रिपीटेशन होने की वजह से क्रॉस हुँ, कर जाते हैं। नहीं मेरा रिपीटेड नहीं हाँ, था कुछ भी। चलो बढ़िया है। देन समराइज़ स्पोकन टेक्स्ट। समराइज़ स्पोकन टेस्ट पहले मैं सिर्फ़ कीवर्ड लेता था, लेकिन हुँ, जब आपने बताया उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग फ्रेजेस और वही आपका टेम्पलेट सेम यूज़ किया एंड ठीक है, होत काफ़ी मेरे 3 फ्रेजेस थे 3 से 4 फ्रेजेस थे और मैंने टेम्पलेट को थोड़ा-सा और कट किया ताकि फ्रेजेस ज़्यादा हो पाएँ और फ्रेजेज़ 2-3 कीवर्ड। ठीक है, जैसे मैं पहले यूज़ करता था इन एडिशन टू को मैंने उसे कट करके एडिशनली कर दिया और थोड़ा बहुत ऐसे करके ठीक है। फ्रेजेस ज़्यादा यूज़ किए। एंड बाकी की लिसनिंग कैसी थी? एफआईबी लिसनिंग अब की बार थोड़ा-सा ईज़ी आया था। लेकिन लेकिन राइट फ्रॉम डिक्टेशन अब क्या बहुत टफ आया था। ओके, सो अभी तक मैंने जितना एग्ज़ाम हाँ, दिया उसमें सबसे टफेस्ट था। सो लाइक वर दे लेंथी या सिर्फ समझ में ही नहीं आ रहे थे? सर पहला ईज़ी था, हुँ, दूसरा मिक्स था, तीसरा समझ ही में नहीं आया, बहुत टफ था, कुछ वर्ड 3-4 वर्ड समझ में आया, हुँ। कुछ मैंने एंड, इन, द, वाज़ जो एक्स्ट्रा होते वर्ड्स हैं, वगैरह लगा एक्स्ट्रा वर्ड मैंने लगा दिए। हार्डली मेरे 4 या पहला 2 तो ठीक हो गया होगा, लास्ट वाले में हार्डली 4 या 5 वर्ड या पता नहीं मुझे कह नहीं सकता मैं कुछ। जितना मैं समझ पाया उतना मैं लिखा और लिख के बाकी ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड्स मैंने सारे लगा दिए कि कुछ तो ठीक है। हो जाएगा। आई थिंक बाकी चीज़ों की परफ़ॉर्मेंस आपकी अच्छी गई होगी लाइक रिपीट सेंटेंसेस, ब्लैंक्स वगैरह वो सब परफ़ेक्ट गए होंगे। नहीं तो जी, डिक्टेशन एक डिक्टेशन खराब होने का मतलब है स्कोर 80 से नीचे आ जाता नहीं तो। हाँ, बट हाँ, वो बिल्कुल मार्जिन पे ही है स्कोर। आई थिंक 80 83 बना है शायद आपका लिसनिंग और राइटिंग में। 83 हाँ, 83 बनाए। ठीक है एंड मैं वहाँ डर रहा था। मैं वहाँ डर रहा था लेकिन लकीली शायद वर्ड सही मैंने समझ लिया होगा, कुछ वर्ड गलत कुछ तो गलत हुआ होगा हाँ, लास्ट थोड़ा सेंटेंस में, बहुत कुछ भी हुआ होगा हुआ ही डेफ़िनेटली। होगा। कितना गलत हो कह नहीं सकता मैं। चलो बढ़िया है। ठीक है एक चीज़ और हाँ, रीऑर्डर में मैंने पिछले 2 एग्ज़ामों से बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया मैंने। ओह! ओके। सीधा नेक्स्ट पे अरेंज करके मतलब मैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देता था, जितना समझ में आया उतना किया और बढ़ा। मैंने एफआईबी रीडिंग, राइटिंग एंड एफआईबी रीडिंग में मैक्सिमम अपना टाइम दिया। रीऑर्डर सही होता तो ठीक, ठीक है, नहीं तो नहीं आगे। तो नेक्स्ट पे जाओ सीधा। ठीक है। ठीक है सैयद कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन। थैंक एनी यू सर एंड थैंक्स अ लॉट सर क्योंकि
आपने जो पढ़ाया वो तो इम्पोर्टेंट था ही था, क्योंकि बहुत आप मतलब एक क्रिस्प बताते हैं चीज़ें, वो चीज़ बहुत अच्छी थी। उसके अलावा आई वुड से जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो गया था, दैट वाज़ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सैयद, थैंक्स फॉर योर थैंक्स वर्ड्स। या थैंक्स अ लॉट सर। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑलराइट, ओके। थैंक्स अ लॉट सर। बाय। ओके।